Mohit, Yes, you sir. come. You come. Yeah. Good evening, sir. Good evening. See, yesterday we discussed about 15 questions, HR questions, and we saw the answers. We discussed the answers also. But हाँ I जी think सर. it has been viewed by about 30 people totally. It doesn't हम्म, matter. That is हाँ जी sufficient. Now हाँ जी we सर. will go for other questions that ChatGPT has coined. हम्म, We may get this question, we may not get this question. But let us ओके. try to understand what is the answer for them. हाँ Question जी number सर. 16. What is the core function of ECGC and why is it important for exporters? Answer. ECGC provides credit risk insurance to Indian exporters, helping them mitigate payment risk from foreign buyers. I think I will give a better answer than this. See, ECGC हम्म, is providing, say, um, policies and extend the risk against, covers the risk against, say, political and also commercial in terms of exports made by them. And ECGC is also giving guarantees to banks to encourage them to make advances to exporters and for covering both pre-shipment and post-shipment. पोस्ट So शिपमेंट. that will be a better answer, doesn't matter. हाँ जी Question सर. number 17. Can you briefly explain the types of risk ECGC covers? ECG, here the answer he has given is ECGC covers commercial risk and political risk. Under commercial risk, he says buyer insolvency or protracted default. Political risk is giving war, import restrictions, only that much he has given. But you can also add the blockage of remittance from the importer's country to our country. For example, if somebody sends money to Russia and all, unless some proper mechanism is arrived, the money may not come because some of the funds are blocked. So ब्लॉग. this is what it is. So that is 17, but I think we can give a better answer than this. Um, सर इसमें रिस्क करेंसी एक्सचेंज रिस्क वगैरह नहीं ऐड होगा? no, no. Currency exchange cover risk, you have to take it by forward risk cover. Forward cover. You have to हाँ take a जी. forward cover. Supposing you are going to export to हाँ जी. America, हाँ and जी. America means you will not cover because you हाँ जी will सर. always get more money from that because the American value is always increasing. हाँ But जी सर. supposing, but if you are importing from America, हाँ जी सर. and then you have to go for forward cover so that you हाँ will get at today's rate itself or some premium added to that. हाँ जी So सर. that has got nothing to do with exporter. Exporter के लिए, if at all, there is no question of any forward cover for export because हर time exporters को ज्यादा ही पैसा मिलता है, हाँ जी सर. कभी भी नहीं मिलता है, हाँ जी सर. कभी भी कम नहीं मिलता है. हम्म. सर इसमें एक क्वेश्चन और है, वो मैं मतलब चैट जीपीटी से आपको मिला है नहीं, कि कई बार इंटरव्यू में सर पूछा जाता है, सर मैं एक आध मॉक दे रहा था कि मरीन इंश्योरेंस और ईसीजीसी का जो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस है, दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो सर इसको भी एक बार आप अगर बता देते अच्छे से. Yeah. Say Bahrain insurance is extended by General Insurance Company. हाँ जी सर. It actually covers from the time the shipment is loaded onto the ship हाँ जी. to the time the shipment reaches the port अनलोडेड द and गुड्स. port and unloaded and delivered to the buyer also. बाय. Because मान लीजिए आपको शिपमेंट कर रहे हैं, हाँ जी शिप सर. अच्छा से चला गया सी हम्म, पर, उधर में जाने के समय पर डाउनलोड करने का समय पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, फायर में चला गया, हाँ जी सर. तब भी कवर होगा.
हाँ जी till the सर। time it is delivered to the customer, buyer. Marine insurance is finished. Yeah, no, marine insurance will cover up to that, the time of delivery of the consignment to the buyer. हाँ जी सर। But ECGC cover will extend beyond that also. हाँ Afterwards, जी। the goods are delivered to the buyer. Buyer is using the goods. He is making payment. If he is refusing to make हाँ, payment हाँ, also, हाँ, you will be getting it covered. But ECGC cover will not cover the risks arising out of voyage. वॉयज में जाने के समय पर कुछ नष्ट हो गया, कुछ फायर हो गया, कुछ हाँ जी सर। रॉबरी हो गया, हाँ। पायरेसी हो गया, ये सब ECGC कवर नहीं करेगा. कहाँ पर जाने के समय पे सर? On the sea, it is on the sea. हाँ जी सर। On the sea, some piracy happens. लेकिन सर उसमें जो इनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी है, उसमें सर जो शिपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, तो सर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में तो आई थिंक सब कुछ कवर होता होगा ना, कि शिप में सामान खराब हो जाए या शिप के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई देख रहा है, इंसिडेंट हो जाए। देख रहा है. गुड, गुड क्वेश्चन. हाँ। लेट मी सी दैट. हाँ, क्योंकि सर दिस पॉलिसीज आर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज। देखते हैं. Then in which case there is no need for this fellow to take marine insurance. हाँ जी सर। No, no, no. Even here they are telling, AI is telling me, Export Credit Guarantee Corporation shipment comprehensive risk policy protects Indian exporters from commercial and political risks, not marine risk. ओके सर। Do you understand the difference between marine risk and commercial risk, then हाँ। political risk? हाँ जी सर, मैं तीनों मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव से मुझे लगा था कि अगर जैसे एक पॉलिसी होती है इनकी, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, इसमें स्टैंडर्ड में ही, तो यानी जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब से कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट तक जो भी प्रॉब्लम Here, होगी उसको इसी। listen. यहाँ पर हाँ जी। first I am seeing the ECGC website. हाँ जी सर। Shipment comprehensive risk policy. हाँ जी सर। It is covering commercial risk, हाँ जी सर। buyer risk, हाँ जी सर। political risk, LC opening bank risk. बस रिस्क। इतना ही. It will not cover. It will not cover the problems on sea. प्रॉब्लम ऑन सी और एयरवेज। नहीं नहीं, वो दोनों में कवर नहीं होगा. हाँ जी सर। Yes. Now next question. We were studying question number 18. 18। No, no, no. 18 we have to read. How does ECGC help promote India's export growth? Answer given: by reducing exporters' credit risk and enabling easier access to finance. ECGC is encouraging more of export activity. I think this answer is correct because we cannot tell about other things that government is doing to encourage exports by giving some discount. What is that called? There is one extra सर, subsidy and all they give. सर Ah, आई थिंक आई कैन वी कैन ऐड इन दिस क्वेश्चन निर्भीक स्कीम, निर्यात ऋण बीमा स्कीम, जो what, ईसीजीसी और गवर्नमेंट के साथ हुई थी। what is that? सर निर्भीक स्कीम, जिस निर्यात ऋण बीमा स्कीम आई थी, उसमें सर इस जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो लोन की परसेंटेज थी, जैसे 10% की समथिंग थी, तो यहाँ पे 7 साढ़े 7% पे
लोन अलॉट करने की बात थी। Mhm. I don't know. Maybe it is a way of getting that is given under easier accessible finance. उसमें बोल सकते हैं. Good, हाँ जी। very good. Question number 19. What are the main types of ECGC policies available to exporters? But here, the answer given by ChatGPT may not be fully sufficient for us. You have to go through the website thoroughly. And when you may not be able to go through 30, 40 policies, I हम्म, suggest you get to know at least 3 or 4 policies thoroughly. But the answer given here is हम्म, main ECGC policies include standard policy, small exporters policy, जी सर। specific shipment policy, हाँ जी सर। and more. But this answer I will not agree as fully correct. But सर um, स्टैंडर्ड में भी 4 पॉलिसीज आती हैं, और but स्मॉल एक्सपोर्टर जो पॉलिसी है उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे 50 लाख तक का टर्नओवर होगा तभी वो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ले सकते हैं। और दोनों ही पॉलिसीज में डिक्लेरेशन, इसका सर जो मेन आंसर जो मैंने फ्रेम किया है अपने लिए, पढ़ वो लीजिए मैं, हाँ, और बोलिए बोलिए. है ना सर, मैं इसका आंसर ये दिया जा सकता है कि सर मैंने ईसीजीसी की जो पॉलिसीज के बारे में पता किया है, वो 2 बेस पे होती है। एक होती है एक्सपोर्टर बेस्ड पॉलिसी, दूसरी होती है डिक्लेरेशन बेस्ड पॉलिसी। तो डिक्लेरेशन बेस्ड पॉलिसी जैसे स्टैंडर्ड पॉलिसी हो गई, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी हो गई, स्पेसिफिक बायर पॉलिसी हो गई, इसमें क्या होता है कि हमें डिक्लेयर करना पड़ता है एवरी मंथ। और स्मॉल एक्सपोर्टर में एवरी 3 मंथ हमें अपने सारी शिपमेंट डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे अभी एक पॉलिसी आई एमबीपी, मल्टी बायर एक्सपोर्टर पॉलिसी, तो उसमें क्या होता है कि हम पूरे साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं और हम एक क्रेडिट लाइन ले लेते हैं। इससे क्या होता है सर, हमें बार बार ईसीजीसी को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो और हमारी जितनी क्रेडिट लाइन है, और हम कई एक्सपोर्टर्स के साथ एक साथ डील कर सकते हैं। वेरी गुड आंसर. इट्स वेरी गुड आंसर. हमको जो पता है बेस्ड ऑन 25-30 years ago जो हमने सिखाता था, उस हाँ रोज जी में सर। आई यूज टू टेल देम, look here, you exporters, you have to send all exports observing all formalities properly and submit statement every month and pay the premium along with that. हाँ That जी is सर। what we used to tell there. अभी तो अब अभी अच्छा अच्छा इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं ये सब. सर ये मेरे एक फ्रेंड हैं ईसीजीसी में काम करते हैं, उन्होंने मुझे ये आंसर बताया था कि इस तरीके से बोलना। एक्सलेंट. हाँ व्हाट जी सर। आपने जो बोला ये तो सही है, अच्छा हाँ है. जी। ये आप बोल दीजिए. गुड. हाँ जी सर। Question number 20. Explain the concept of whole turnover packing credit guarantee. Answer given here is whole turnover packing credit guarantee insures banks against the risk of non-payment of packing credit by exporters under multiple shipments. मान लीजिए पैकिंग क्रेडिट क्या होता है. एक बैंक ने अपना कस्टमर के लिए, हाँ एक्सपोर्टर जी। कस्टमर के लिए, बेस्ड ऑन द ऑर्डर दे गिव मनी फॉर हिज बाइंग गुड्स, दैट गुड्स। इज रॉ मटेरियल्स, हाँ जी एंड सर। देन पैकेज ये सब करके भेजने के लिए, that is being done by a bank that is known as packing credit. And this is being declared by the bank in the old turnover packing credit guarantee. Every bank will have only one WTPCG. All the branches will be reporting to head office. Head office will include all the details in the statement to ECGC and pay the premium to the debit of हाँ the जी। party's account. हाँ जी This सर। is the system that is going on. And even here, these people, bankers, will have to follow all the conditions. मेरा experience ये था. हाँ जी सर। में हम काम करने के समय पर उन्होंने बोल दिया
से पार्टी ने 20 लाख तक एडवांस लेते थे उस रोज में. आई एम टॉकिंग हाँ अबाउट 25 years ago, 30 years ago. हाँ जी Yeah. सर. And what happened? Suddenly, he one day wanted some 5 lakhs more. And it was हाँ granted by the bank after getting approval of the regional office. हाँ बट जी जब सर. हम लोग क्लेम डालते थे हाँ तब जी सर. उन्होंने बोल दिया यू हैव अलाउड एक्स्ट्रा फैसिलिटी टू हिम विदाउट इन्फॉर्मिंग अस. हाँ जी सर. ऐसमपी बोल के वो मना कर दिया अपना लाइबिलिटी का. और फिर हाँ. वो ये भी बताएगा आर यू मेंटेनिंग रिकॉर्ड दैट यू हैव बीन मेकिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, आर यू गेटिंग पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स फ्रॉम देम. ये सब उनको हाँ देना पड़ता है. बाद में हाँ जी सर. ईसीजीसी तो मना कर देगा अपना लायबिलिटी को. दैट दे आर वेरी क्लेवर फेलोस. हाँ जी सर. Yeah, that's what it is. So that was question number 20. हाँ जी सर. 21. How does ECGC's risk assessment process benefit Indian exporters? Answer given. ECGC evaluates buyer creditworthiness and political conditions, offering coverage that reassures exporters and banks. Super. It's a very good answer. हाँ सर, दिस इज एकदम टू द पॉइंट आंसर, Yeah. एकदम करेक्ट. ECGC evaluates buyers' creditworthiness and political conditions. Super, Baba. हाँ जी सर. Offering coverage that reassures exporters and banks. Question number 22. What role does the government of India play in ECGC functioning? The government of India owns ECGC. It is offering policy support funding to ensure the corporation meets export promotion goals. जितना पैसा चाहिए वो सब वही देते हैं. जैसे गवर्नमेंट सर देते. अभी रिसेंट में दिया है 4,300 करोड़ रुपए, अच्छा अच्छा. पीछे दिया था. ये भी बोलने से बढ़िया है. गुड. है ना. और जैसे निर्भीक स्कीम आई थी तो वो भी थी तो गवर्नमेंट की स्कीम. जैसे अभी भारत ट्रेड नेट स्कीम आ रही है, इससे क्या होगा कि जितने भी एक्सपोर्टर्स होंगे सबका ऑनलाइन एक जगह पे लाके एक प्लेटफॉर्म पे डेटा इकट्ठा किया जाएगा. तो इससे भी ईसीजीसी का एक्सपोर्टर्स तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, जो इस बार के बजट में है, भारत ट्रेड नेट स्कीम. और एमएसएमई को 20,000, वो सॉरी 20 करोड़ तक का जो लोन है उसकी बात भी की जा सकती है इस आंसर में, जो 10 करोड़ से 20 करोड़ बढ़ा के किया है. तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स आगे आएंगे और ईसीजीसी से संपर्क करेंगे, तो इससे ईसीजीसी का भी विस्तार होगा यानी. या यू कैन ऐड दिस बजट मैटर आल्सो. गुड. हाँ जी सर. नंबर 23. कैन यू मेंशन एनी specialized services or schemes introduced by ECGC recently? I think this question it would not have answered correctly. Answer given. ECGC periodically launches specialized covers like export factoring and tailored policies for MSME export. तो genuine, it's a general answer है, सही नहीं है. आप इसको improve कर दीजिए. नोट कर लीजिए. सर इसमें जो आंसर दिया जा सकता है, एक तो ईसीजीसी ने काफी सारी ई सेवाएं लॉन्च की हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि लोग उनकी स्कीम्स के साथ डिजिटली जुड़ सकें जितनी भी. और एक सर एक्सपोर्ट सिक्योर करके उन्होंने अपना एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है. हम्म. तो सर इसका बोल सकते हैं. बाकी स्कीम जैसे मैंने बताया निर्भीक स्कीम, तो ये वाली स्कीम भी इसी की है. और सर जैसे एमबीपी मैंने बताया था, मल्टी बायर एक्सपोर्टर पॉलिसी, ये भी कोई बहुत पुरानी पॉलिसी नहीं है, तो इसको भी बोला जा सकता है अपने आंसर में. गुड. वेरी हैप्पी. ये सब कहाँ से पढ़ा आपने? सी यू हैव सम मैकेनिज्म बाय व्हिच द वॉइस विल बी हर्ड टू यू. हाँ जी सर. गुड. सर ये सारा मैंने मतलब कुछ गूगल से पढ़ा, कुछ जैसे मैं आपसे प्रिपेयर करता हूँ, और एक दो टीचर्स यूट्यूब पे हैं तो उनसे मटेरियल, या कुछ मेरे एक दो दो फ्रेंड्स हैं वो ईसीजीसी में हैं तो उनसे मैटर लेता हूँ. फिर सर के जो एक दो एलुमनाइज ईसीजीसी में हैं, वो जैसे आज मुझे उन्होंने एक बजट का पीडीएफ भी दिया है कि ईसीजीसी के लिए इसमें पर्टिकुलर क्या है, तो वो पीडीएफ मैंने पढ़ा. फिर सर मैंने 127 पेज की जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़ा हुआ है.
तो सर वहां से ये सारी चीजें मिली हैं। Good. You have done. You have prepared very well. Question number 24. How does ECGC contribute to reducing non-payment risk from the foreign buyers? ये तो routine question, ये क्यों पूछ रहा है ये पता तो नहीं. सर रोटी। Yeah. तो फिर again ECGC indemnifies exporters for losses if foreign buyers default, thus reducing financial impact. Okay, no problem. Correct only. 25. What is the difference between standard policy and small exporters policy under ECGC? 25. The standard policy is comprehensive for regular exporters, while small exporters policy caters specifically to lower turnover exporters with simplified procedures. Super. It's a good answer. सर Can you एक tell some more पॉइंट, points? बताइए. सर एक पॉइंट तो ठीक है, अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सर, सब इसमें ये भी बोल सकते हैं, इसमें सर एक पॉइंट है कि जैसे स्टैंडर्ड पॉलिसी में पॉलिटिकल रिस्क 90% कवर होता है, लेकिन स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में पॉलिटिकल रिस्क 100% कवरेज होता है, जो कि ईसीजीसी की बहुत कम पॉलिसीज में है। Mhm. They और get less policies. Yeah, yeah. और They सर get, इसमें दूसरा, yeah. बोलिए. सर इसमें दूसरा पॉइंट ये भी ऐड हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, उसमें जो, अगर आपके साथ कोई भी रिस्क, कोई भी दुर्घटना इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके बाद आपको 4 महीने तक का वेट करना पड़ेगा, जो भी आपकी पेमेंट ड्यू डेट थी उसके बाद ही ईसीजीसी आपका क्लेम सेटल करेगा। लेकिन स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में ये 2 महीने, ये टाइम पीरियड 2 महीने का हो जाता है, वेटिंग पीरियड। हम्म. तब तो तो सर बढ़िया ये, है. That's a good हाँ one. जी, Next one. Am I showing it on the screen? Yeah. Just a minute. Yeah, yeah. हाँ जी, Uh, you can't see it now, but then now we were on question number 25. Now we are going to 25. Should I repeat? What is the difference between standard policy and small exporters policy under ECGC? The standard policy is comprehensive for regular exporters, while the small exporters policy caters specifically to lower turnover exporters with simplified procedures. आपने और कुछ पॉइंट्स भी ऐड किया था. अच्छा हाँ जी है. Thank you. We are going to question number 26. एक- How हाँ do जी ECGC claims procedures work in case of buyer default? आंसर दिया है. Exporters must file a claim with documentation and proof of loss. ECGC examines compliance before reimbursing. यही तो प्रॉब्लम है. ये लोग हम्म, इसी चीज को पकड़ के किसी ना किसी रीजन फाइंड आउट करके क्लेम को रिजेक्ट करवा देंगे. हाँ जी सर। यही प्रॉब्लम लेकिन है. सर ऐसा आंसर हम दे नहीं सकते ना इंटरव्यू में। यू कांट गिव इन दी ईसीजीसी. हाँ बट जी। इस पे क्या प्रॉब्लम है? सी, हम्म, लोग तो बड़ा बड़ा कंपनी रखा है. हर हाँ जी, काम तो एक ही आदमी की नहीं कर पाएंगे. हाँ जी, जैसे हम करते हैं, मेरा काम इतना ही है, जितना हम्म, मेरे से होगा उतना करेंगे हम. हाँ जी सर। वो लोग तो 10, 15, 20, 100 आदमी रख के काम करते हैं. उस लोग से किसी आदमी, नया आदमी और जान पहचान छोड़ के वो मिस कर दिया, ऐसा में भी लोग कुछ प्रॉब्लम हो गया तो दे विल नॉट बी गेटिंग इट कवर्ड. दिस इज द रिस्क. हाँ जी there सर। is there is no other go there is no other go but to accept this and go. हाँ जी, Question number 20. You can't tell this negative point in the interview. हाँ जी सर। 27. What kind of credit information services does ECGC provide? Can you answer me? यस सर। सर ईसीजीसी जो क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक तो इंश्योरेंस देता, रिस्क मिटिगेशन के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल रिस्क, कमर्शियल रिस्क,
दूसरा एक कंसाइनमेंट पॉलिसी भी ऑफर करता है, जिससे नो कि नो, सॉरी कंसाइनमेंट। सॉरी, यू आर नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आपने हाँ जो जी। कुछ बोल रहे हैं वो तो नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। सर आपको एक ये बार। बोलना है विच व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस। सर एक बार आप बोलिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन अभी। क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस का मतलब, अभी हम हाँ। आंसर को पढ़ रहे हैं। एन ईसीजीसी प्रोवाइड्स क्रेडिट रिपोर्ट्स ऑन हम्म, ओवरसीज बायर्स। हम लोग जो भेज सर। रहे हैं उसको खरीदने वाला का क्रेडिट पोजीशन कैसे है। हाँ जी सर। वो अच्छा आदमी है, वो बुरा आदमी है, ऐसा मपी डिटेल्स ये दे देगा। हाँ दैट सर, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हाँ, दैट enables exporters to assess payment risks। उधर में मान लीजिए अभी कोई आदमी नीरव मोदी के लिए इंपोर्ट कर, नीरव मोदी का नाम पर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं हाँ जी सर। और वो भेज रहा है अमेरिका से। वो आने से तो अमेरिका में जो वाले ईसीजीसी इधर भी एक है, वो हाँ लोग जी उनको सर। बोल देगा ये आदमी, इस नाम का आदमी ठीक नहीं है, हाँ जी। ऐसा बोल देगा। बट हमारा नीरव मोदी क्या करेगा, हम अपना नाम पर लेने का बदला मोहित का नाम पर ले लेगा बस। हाँ जी सर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हाँ जी। मतलब क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है और गाइड करता है पॉलिटिकल सिनेरियो को भी, इसमें ये भी सर ऐड हो सकता है। एक्सलेंट, दैट इज करेक्ट। हाँ जी सर। बट द क्वेश्चन वाज ओनली अबाउट क्रेडिट इंफॉर्मेशन। क्रेडिट Political इन्फॉर्मेशन। though, that is a different. Anyhow, you can add it. Next हाँ one, जी। 28. What are some typical reasons for claim repudiation by ECGC? Super question. ये तो पूछेगा नहीं, वो अपना नेगेटिव पॉइंट कभी पूछेगा नहीं। Claims can be rejected if the exporter fails to meet policy condition such as late intimation or incomplete documentation. हाँ सर, ये समझ मैंने गया? आज ही पढ़ा था सर, ये मैंने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज आ जाएगी कि एक्सपोर्ट करने के लिए ऑथराइज चीजें हैं नहीं है। So many points with they will cover everything हाँ। under this. हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट Hmm. कंप्लीशन। So this is the risk, but exporters know it, but still they do it because they are also doing so many frauds. That's the reason. हाँ जी। 29. How does ECGC's coverage benefits banks that finance exports? It's a good question. With ECGC coverage, banks finance exports more confidently, but yeah, knowing repayment is safeguarded against buyer defaults. सही है, इट्स अ गुड आंसर। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है इसको। हाँ जी सर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजीसी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग फैसिलिटी? आंसर दिया है, ईसीजीसी एक्सपोर्ट फैक्टरिंग मैनेजेस क्रेडिट रिस्क एंड कलेक्शन, improving exporters cash flow without requiring collateral। अच्छा, फैक्टरिंग का मतलब ये है जो हाँ जी पैसा सर। हम लोग को आने वाला है हाँ इसको जी हम सर। लोग फैक्टरिंग एजेंट का बाद में बिक्री कर देगा एट डिस्काउंट। हाँ जी सर। और फैक्टरिंग एजेंट ने उसको स्टेप्स लेके वो पैसा को रिकवर करेगा। हाँ जी सर। सपोजिंग वी टेक अ पॉलिसी नोन एज विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग पॉलिसी, जिसमें वो पैसा नहीं आने से भी हम लोग वापस देने का जरूरत नहीं है। So that way, ECGC is helping the exporters, assuring them of getting the money towards the exports made by them. सर इसमें पीछे जो क्वेश्चन एक था कि किस तरीके के रिस्क को नहीं कवर करता है, उसमें सर एक चीज और मैंने पढ़ी थी, मतलब आज ही मैं इसी की साइड पे देख रहा था कि उसमें सर ये भी लिखा हुआ था कि यदि आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं और आपके एजेंट की तरफ से कोई गड़बड़ या मिसकम्युनिकेशन है,
तो भी ईसीजीसी उसको कवर नहीं करेगा अगर ईसीजीसी ये या फाइंड आउट कर लेता है। ये अभी मान लीजिए हमारा एम्प्लॉई हमारा वजह से काम करता है, लेकिन हाँ वो जी। गलत काम कर देते हैं, हाँ तो जी सर। उसको नहीं कवर करेगा। हाँ जी सर। दे आर वेरी क्लेवर क्लेवर फेलोज, बट इवन देन अभी अभी हमने वेबसाइट में देखा, इन्होंने सम करोड़ करोड़ का रुपया कुछ तिरुपुर कंपनी के लिए दिया है, ऐसा बोला है। हाँ जी सर। Anyhow, best wishes. Thank you so much. Today we have done 15 questions. हाँ Tomorrow जी। we will be doing 10 questions on export procedures. Then day after tomorrow we will do import procedures, 10 questions. Then after that bank credits, packing credit, post shipment credit, etc. Then that's all. Totally there are only 60 questions. सर Today एक अगर हो सके तो हम एनुअल रिपोर्ट पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे 5-7 पढ़ेंगे पढ़ेंगे. We will go through that. हाँ जी सर। एनुअल रिपोर्ट को लेके व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आप एक काम कर दीजिए ना. हाँ जी सर। यू प्रॉब्ली यू कांट डू इट, हम करेगा. एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके आई विल फीड इट टू माई चैट जीपीटी. हम उसको बोलेगा प्लीज गिव मी अ रिपोर्ट इन 3 पेजेस. ओके सर, मैं आपको सेंड कर देता हूँ एनुअल रिपोर्ट, एक बार चैट जीपीटी में आप डाल के करिएगा, मेरे पास रिपोर्ट तो पड़ी हुई है। प्लीज कर दीजिए, ऐसा कर देगा हम. अभी तो हाँ। आई डोंट नो वेदर यू टोल्ड और somebody told. हाँ। अभी कुछ चीज हम लोग का फोटो का अभी आने से, उस फोटो को हम लोग चैट जीपीटी को देने से वो हाँ। अपना से टाइप करके हमको दे देता है. हाँ जी सर। दैट इज some content which is available in photo हाँ जी सर। that can be fed into chat gpt. Chat हाँ जी। gpt will give you what, the written content. रिटर्न रेट, हाँ जी सर, वो दे देता है। I think it आई will give ट्राइड you, इट। it will give some videos like this. Supposing I think I can ask chat gpt to give out all these things instead of my speaking. I can ask it to make a video of this, all the 60 questions, and then put it. वो भी कर देगा जी. नहीं नहीं सर, वो वॉइस मैसेज में देना पड़ेगा। एक्चुअली ना चैट जीपीटी अभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है, तो अगर आप वॉइस मैसेज में डालेंगे यानी ऑडियो फॉर्म में डालेंगे इसको, तो वो टेक्स्ट में कर देगा। लेकिन अगर आप किसी वीडियो का कंटेंट राइट कराना चाह रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन अभी आई डोंट थिंक सो कि अच्छा, दे कैन डू। अभी अभी इसको देने से तो वो नहीं कर. लेट मी, यू बी स्टेइंग ऑनलाइन. आई विल गिव द फर्स्ट 15 क्वेश्चंस. हाँ जी सर। लेट मी सी व्हाट इट डज. ये तो बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है. हाँ जी सर। आई एम covering human relations, 15 questions, and I am going to give it to my chat GPT. ओके। इसमें दे दिया. देखे अभी हमने क्या करना है इसको, मेक ऑडियो और वीडियो. सर एक बार फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राइड फॉर ऑडियो। लेट्स सी। 1 minute. अटैच, सर्च, क्रिएट इमेज, गेट एडवाइस, समराइज टेक्स्ट. हाँ, समराइज टेक्स्ट में आ जाएगा. बट दिस वन, हेल्प मी राइट मोर. मोर में analyze images, code, analyze data. What I can do, 1 minute. I should sign up. I should sign up. Just a minute. 1976. Who is helping you at home? सर कोई भी नहीं, मैं खुद फोन के स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से पढ़ता हूँ, माई सेल्फ। आई Hmm. एम लिविंग अलोन इन दिल्ली। Yo. हाँ जी सर। Hmm. Okay, I have made this. Make a video. Create image बोलने से क्या करेगा? सर आई थिंक
कर देगा। फॉर माई प्रेजेंटेशन, फॉर माई बोलने से वो कर देगा ना। प्रेजेंटेशन में शायद सर हो सकता है पीपीटी बना दे। कैन यू गिव मी सम डिटेल्स? इट इज आस्किंग what is your presentation about, what key points do you want to image to highlight, also do you have any preferences for style, professional, modern, minimalistic, colorful, etc. It is asking like this. या सर इट इज। Babre, it's asking so many things. I will say colorful, सर जी, professional. सर डिड यू स्टॉप द रिकॉर्डिंग? Oh, acha, acha, I'm recording. Yeah, doesn't matter. Let it be on. Acha, 1 minute. बिकॉज